my screen? Yeah? Yes, ma'am. Great. So today we are going to start with a new topic. That is the, I think, first topic of the unit 2. I guess so. So this is market segmentation, right? So can you can make an idea from the picture only that what segmentation means. So I think you are able to guess it. What we are doing. Anyone? Anyone? Ma'am, segmenting the market, target market. What you can make out from this picture? Tell me that only. Segmentation of a group into various parts or segments, you can say, which are similar to each other. Like the purple is together, yellow people are together, blue are together, the orange are together. Means segment means what? मतलब segmenting the market is to segment the market into what you are trying to. I think you need to be little. Dividing the market. Yeah, dividing the market on common On the interest. basis of several similarities between the customers. like in this picture we have divided maybe on the basis of color. Yeah. So there should be some basis in the mind before segregating the market. But do you know why there is a need of segregation? क्या जरूरत है? To cater to the needs of the customer or different kinds. Okay. Any other? No other reason. Ma'am, to group the customers with homogeneous interests. See, that's yes, we are doing in segmentation. We are grouping the group of homogeneous people. But my question is that why we are doing so? Why there is need of such? जरूरत क्या है? Come on. You are BCom final year. You can't be stopped by one sentence, na? Come on. Marketers are applying these formulas on us. You just think from a customer perspective, we all are consumer. If someone is offering us something which we required, what are the benefits? But why any marketer would be doing that? Just think, taking your perspective as a customer in the mind and try to think like that from marketer, and as a customer, what you gain, whatever you are gaining in return, whatever marketer is gaining, segmentation is done because of that only. Ma'am, so that the product is more user friendly and so that the company is able to understand the target market better. Okay. We all use pen while writing a paper. Yes, ma'am. We all use pen. Do you think that we all use same type of pen while writing a paper? No, ma'am. क्या क्या वैरायटी हो सकती है पेन की? आपने देखा होगा आपका पेन ब्लू कलर का है, यू आर राइटिंग अ पेपर, एग्जाम पेपर कह रही हूँ जहां पर यू हैव टू पर्टिकुलरली यूज ब्लू पेन, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर्स ऑफ द पेन, आई एम जस्ट टॉकिंग ब्लू पेन, राइट? नाउ व्हेन यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम, right, you go to the shop, most of us go to the shop before the exam and we look for some pen. Everybody agree with me? We do that? We do that? Yes, ma'am. है ना? Everybody brings new pen. So would anybody like to share me what kind of pen you look for? कोई भी बताओ मुझे randomly. Which runs smoothly.
वन बाय वन बताएं. Yes, I'm waiting. Tell me. Tell me. I'm waiting. A dark pen with thin nib with better Somebody grip. is looking for dark ink जो अच्छे से मतलब ऐसे लाइट ना हो. Yes, और With a मैम good grip. जिसका फ्लो अच्छा हो. या जिसका फ्लो काफी स्मूथ हो. और come on. Comfortable to hold. कंफर्टेबल टू होल्ड, क्योंकि बहुत देर तक लिखना होता है तो हाथ में दर्द हो जाता है. सो कुशन वाले पेन जो बटर फ्लो वाले आते थे, है ना, आगे थोड़ी रबड़ लगी होती है, दैट इज कंफर्टेबल. और लॉन्ग राइटिंग. लॉन्ग राइटिंग हो, बीच में इंक ना खत्म हो जाए. एक रिस्क ये वाला भी होता है कि कईयों का चलता बहुत अच्छा है पर इंक बहुत जल्दी जाता है. सो वी रियली वांट टू लुक दोस पेन जो पेपर निकाल दे अच्छे से. और कुछ इसीलिए हम नया लेने जाते हैं, बिकॉज पुराने पेन में कई बार हमें आइडिया इंक है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि बीच में हमें मुश्किल ना हो जाए, बिकॉज देयर आर सम पर्टिकुलर पेन जिसके साथ हमें लिखना अच्छा लगता है एंड वी आर फील वेरी इमोशनल विद दैट. और जिंक्स भी तो होता है. ऐसे कलर का पेन मेरा था, ये वाला पेपर बहुत अच्छा गया था, इसी कंपनी का, मैं दोबारा लेकर आऊंगा चाहे वो बेचारा अब आता भी ना हो. हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? नो मैम, Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं 10th का बोर्ड दिया था, 12th का बोर्ड दिया था, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे. लास्ट सेमेस्टर में मैंने इसी एग्जाम इसी पेन से दिया था. आई थिंक दिस इज लकी फॉर. नहीं होता किसी के साथ. अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम. Yes, होता ma'am, है. होता है. कपड़े भी होते हैं. ये शर्ट पहन के गया था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था, हर पेपर में वही शर्ट, जब तक वो एक पेपर बर्बाद ना कर दे शर्ट. Ma'am, hair clip भी होता है. हाँ, सब कुछ होता है. मतलब इवन हमारा सिटिंग पोज भी हो सकता है. चलिए, और कोई नहीं, बस इतना ही देखते हो यार तुम लोग. टिप नहीं चेक करते उसकी, टिप मोटी है या पतली है. Ma'am, thin वाली. देखते हैं हम टिप्स भी. कोई फेल्ट टिप देखता है, कोई नॉर्मल टिप देखता है ना. कई बार कोई लोग आजकल इरेजेबल पेन भी आने लगे हैं, सो मे बी वी आर थिंकिंग यार कटिंग कम हो, इरेजेबल पेन ले लेते हैं, इरेजेबल इंक वाला है, राइट. तो Yes. बहुत ऑप्शंस है. एक सिंपल सी चीज, पेन, अ ब्लू पेन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज, उसमें भी हमारे कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास. किसी को 2 रुपए वाला स्टिक अच्छा लगता है, यार पेपर के बाद मेरे से पेन तो रहता नहीं, मैं तो फेंक देता हूँ. कोई सबसे बढ़िया पेन लेकर आता है पेपर में, नहीं यार पेपर है, पेपर में पेन तो बढ़िया चाहिएगा, चलिए चाहिए मुझे. सो प्राइस कुड बी अ थिंग. उसकी क्वालिटी हो सकती है, कोई और हमारा साइकोलॉजिकल कोई कनेक्शन हो सकता है. तो देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर पार्ट ऑफ द लेक्चर. बट राइट नाउ सेगमेंटेशन का फायदा क्या होता है कि देखिए सबकी वेरिड नीड्स हैं, और सबकी वेरिड नीड्स एक चीज से थोड़ा मुश्किल होता है, राइट. देते हैं लोग, पर वो इनिशियल स्टेजेस में होता है जब एक प्रोडक्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब कार पहली बार आई थी, कौन सी कार आई थी पहली जो बड़ी फेमस है? हेनरी फोर्ड ने बनाई थी पहले. फोर्ड जो कार्स आई थी वो ब्लैक कलर में आई थी. तो बहुत सालों तक कोई और कलर आया ही नहीं था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच पर्टिकुलर कि जब मैं लोगों को कार दे रहा हूँ और मैं ब्लैक में दे रहा हूँ, व्हाई दे नीड अनदर कार. ये तो जब आपका कंपटीशन बढ़ जाता है तब आप निश की तरफ जाना शुरू करते हैं कि ओके नाउ पीपल हैव एग्जॉस्ट. अब इसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस चीज को यूज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट इज नॉट अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर देम. तो मुझे अपना एक छोटा सा ग्रुप चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट को उसको यूज करे. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक की जब हम बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं. कोल्ड कोक की अगर हम बात करें, बच्चे भी पी लेते हैं. इट्स नॉट दो, इट्स ऑलवेज सेड कि नहीं पीना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स को भी तो बिकना है ना. उन्होंने अपना यूएसपी बना लिया है मैंगो ड्रिंक का कि इतना ज्यादा फिजी नहीं है, ये है वो, नॉन फिजी हो गया. बट अगर हम देखें तो जनरली बच्चे लव कोक और पेप्सी और समथिंग लाइक दैट, राइट. ओल्ड एज का बंदा भी पी सकता है उसको, राइट. लेकिन उन्होंने एक सबसेक्शन बनाया डाइट कोक से.
कम शुगर वाली कोक से, बिकॉज दे नो कि इसमें बहुत सारा शुगर है. तो ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी, उसका टेस्ट डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है, but definitely not everyone is drinking that coke, but there are some people who drink only diet coke. Similarly आप कोई भी चीज देखेंगे उसमें आपको इस तरह की सेगमेंटेशन, कैलोग्स स्पेशल के वेट लॉस वाला, यू नो दीपिका पादुकोण को दे हैड अर्लियर, ठीक है, जब वो ये शुरू किया गया था. नाउ कैलोग्स एक सीरियल, ब्रेकफास्ट सीरियल सिंपल, उसके अंदर वो डाला. फिर उसके बाद अलग अलग वेरिएंट्स भी निकाले, किसी को ड्राई फ्रूट वाला पसंद होता है, किसी को प्लेन पसंद होता है, किसी को फ्रूट्स वाला पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को हनी पसंद है उसके अंदर, किसी को नहीं पसंद है. सो फिर उन्होंने धीरे धीरे सेगमेंटेशंस निकालने शुरू कर दिए, बट ओरिजिनली वो एक चीज से आए थे. अगर हम और चीजों की बात करें तो ओरिजिनली जैसे कोई भी एक चीज आती है वो एक सिंपल आती है. जैसे हमारे OTT की बात कर लेते हैं हम. OTT सबको पता है, वी ऑल आर वॉचिंग देम मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो पहले एक आया, फिर जब दूसरा आया तो वो कुछ डिफरेंट लेके आया. फॉर एग्जाम्पल डिज्नी हॉटस्टार आया तो वो अपने चैनल्स में मैच लेकर आया, और आप ऐड भी देखेंगे टीवी में कि फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मैच एक लंबी चीज होती है, और हर जो लोग अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं क्रिकेट मैच को, दे आर वेरी इमोशनल अबाउट इट. दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, आवाज ना लगे, लाइट ना जाए, अनइंटरप्टेड हो, नेट डाउन ना हो. फिर टीवी में अगर उस टाइम पे दादाजी का, पापा का न्यूज का चैनल टाइम हो गया, और हमारे घर में अगर अनफॉर्चुनेटली एक ही टीवी है, या बिग स्क्रीन पे आपका टीवी देखने का मन था, आपके रूम में इतनी बिग स्क्रीन वाला टीवी नहीं, बट यू आर एंजॉयिंग, और आपको लगे 9 बज गया, अरे पापा हटाएंगे, पापा कहेंगे इसको बंद करो, ये मम्मी कहेगी यार मुझे मेरा देखने दो. एंड इफ यू आर ए दैट काइंड ऑफ गाय की जो अपने मम्मी पापा को ज्यादा मना नहीं करते, एंड यू एडजस्ट, तो आपका मन तो यू विल बी फीलिंग बैड अबाउट दैट कि मैं देख नहीं पाया. तो उन सब चीजों को कैटर करने के लिए इन लोगों ने एक एक अलग से अपनी ज्यादातर चीजों को दे हैव डन दैट वे कि एक अलग ऑफर लेकर आए कि OTT पे अपना क्रिकेट मैच दिखाने लगे. अब तो सीरियल्स हैं और अब तो मूवीज ही रिलीज हो रही, तो चीजें चेंज हो रही है. द थिंग इज दैट कि सेगमेंटेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कंपनी प्रॉफिटेबली, देखो अगर एक ही मार्केट में सब अटैक करेंगे तो वहीं से पोर्शन मिलेगा, राइट. बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपेटिटिव एडवांटेज लेना. पर वहां पर कंपनी अगर एक डिफरेंट निश को ढूंढकर अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकती है बाय सर्विंग अ कस्टमर दैट हैज लिटिल वेरिड demands than other customers, regular customer. For example, ESPN cricket, आप लोगों को तो शायद जब से आप पैदा होंगे आप देख ही रहे होंगे, बट आई नो कि पहले ESPN होता था, वो एक स्पोर्ट्स चैनल होता था. बाद में उन्होंने क्रिकेट का अलग निकाल दिया, और उसमें भी बाद में क्लासिक ओल्डीज का अलग निकाल दिया. जितने भी ये मूवीज के चैनल्स हैं, ये एक सेगमेंट है. कोई पुरानी मूवीज दिखाता है, कोई 80s 90s की मूवी दिखाता है, कोई इंग्लिश मूवी दिखाता है, कोई सिर्फ एक्शन की मूवी दिखाता है. मतलब मूवीज में भी एक्शन अलग है, जी गोल्ड, जी क्लासिक अलग है. विद इन मूवीज भी उन्होंने सेगमेंट किया. पहले तो मूवीज को अलग किया फ्रॉम ए रेगुलर चैनल, एंड मूवीज के अंदर से भी और सेगमेंट निकाला, क्योंकि फाइट बढ़ता जा रहा है, देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स. फिर एक रीजनल मूवीज के चैनल भी अलग कर दिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितना वो निश होता जा रहा है. और ये निश यहाँ तक पहुंच गया है कि हम अब सेगमेंट ऑफ 1 पर आ गए हैं. अब हम हर कोई, मैं आई विल डिस्कस मोर थिंग ऑन दिस सेगमेंट ऑफ 1. अब एक नया कंसेप्ट आ गया है कि अब हम ये भी नहीं मानते कि 2 लोग एक जैसे, 2 कस्टमर एक जैसे. वी ऑलवेज थिंक देयर इज अ सेगमेंट ऑफ 1. और ये सब पॉसिबल हो पाया है डिजिटाइजेशन की वजह से. जो चीज पर डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट आ गया है, या जो सर्विंग डिजिटाइजेशन पे होती है, दे आर गोइंग फॉर द सेगमेंट ऑफ 1. एंड यूट्यूब और जितने भी आपके OTT हैं, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है. आपके फोन का यूट्यूब अलग होगा, मेरे फोन का यूट्यूब अलग होगा, किसी मम्मी के यूट्यूब की अलग सजेशंस होंगी, पापा के यूट्यूब की अलग होगी, और भाई के यूट्यूब चैनल की सजेशंस अलग होगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ व्हाट यू विल से डिजिटाइजेशन ऑफ द कंटेंट. मतलब जो भी सर्विस डिजिटाइज फॉर्म में है, उसने बहुत ज्यादा पॉसिबल कर दिया है कि आप लोगों को बिल्कुल आपकी हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट मैच करके वो आपको ऑफर करते हैं. यू नो दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट जो अमेजोन है, अमेजोन अपनी सेल्स का 30% जस्ट अर्न फ्रॉम द रिकमेंडेशन पार्ट ओनली. हमें लगता है कि हम अलग हैं, हम अलग सोचते हैं, या हमारे मन की बात किसी को पता नहीं है. वी आर totally wrong. This AI and technology
has trapped us all. वो हमें लगातार देखते जा रहे हैं, वो लगातार हम पे पैटर्न ढूंढते जा रहे हैं, एंड लगातार they are able. It won't be a very distant future. It is not. It is just in offing. आपके घर पे डोरबेल बजेगी, आप दरवाजा खोलेंगे, सामने आपको अमेज़न का पार्सल मिलेगा या फिर किसी और का पार्सल मिलेगा, एंड व्हाट यू विल व्हेन यू विल ओपन दिस पार्सल, आपने कोई पेमेंट नहीं की, आपने कोई शॉपिंग नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, आप पार्सल खोलेंगे, पार्सल में वो चीजें नजर आएंगी जो एज पर अमेज़न आपका मन तो है खरीदने का, पर आप किसी भी वजह से हेजिटेंट हो। सो कई बार क्या होता है कि हमारा मन, हम हेजिटेंट होते हैं, कुछ भी रीजन हो जाता है, हम पोस्टपोन कर देते हैं अपनी परचेज को, मे बी बजट, मे बी चल अभी ये ले लिया, मे बी जस्ट लाइक दैट ले लेंगे बाद में, वी सी नो। वो एक तरीके की पहले इम्पल्स बाइंग दूसरी तरीके से होती थी कि आपको चीजों को दिखा दिखा के अट्रैक्ट कर दिया। अब इम्पल्स बाइंग ये हो गई है कि आपके सामने चीज को ला दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड, और क्योंकि वो इम्पल्स बाइंग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल अटैचमेंट है उस चीज से, कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग कि मुझे जरूरत है, राइट, अब नहीं है तो 2 दिन बाद, तो वो आपको कन्वीनियंस प्लस आपके ब्रेन को ब्रेन न्यूरो मार्केटिंग लगाकर वो आपको चीज ऑफर करेंगे एंड देन यू विल मेक अ पेमेंट। अच्छा आ गई, वाओ दैट्स ग्रेट, चलो ठीक है पेमेंट अब आ ही गई है तो रख ही लेता हूँ, चाहिए तो मुझे है। एक तरीके से नीड जनरेट कराई जाएगी इस तरीके से आप। सो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज दे आर ईटिंग अप मार्केट लाइक दैट। एनी हाउ, सेगमेंटेशन ऐसे ही नहीं करती है कोई भी कंपनी, देयर इज अ थॉट बिहाइंड दैट। अगर हम जब भी कोई कंपनी अपनी सेगमेंटेशन करती है तो सबसे पहले उसका स्टेप 1 होता है कि उसको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेगमेंट करती है या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की क्या एक मिशन है, टू एंटरटेन द वर्ल्ड। देखिए जो मिशन स्टेटमेंट है वो थोड़ी ब्रॉड रखी जाती है। एंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान मूवी से एंटरटेन होगा या एक पर्टिकुलर सीरीज से एंटरटेन होगा या मैच से एंटरटेन होगा या गेमिंग से एंटरटेन होगा, तंबोला ऑनलाइन तंबोला से एंटरटेन होगा, बहुत सारे तरीके हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं मिस आउट कर रही हूँ। तो हम किसी भी चीज से एंटरटेन हो सकते हैं, लाइव शो से एंटरटेन हो सकते हैं, आपका हीरो आपसे बात करे लाइव, आगे वो भी पॉसिबल होगा। शायद इन्होंने शुरू भी किया था पेंडेमिक्स में कि आप पैसे दे दीजिए, कुछ एक क्राउड सोर्सिंग शुरू की थी, आपको उस हीरो से वो हीरो आपका हालचाल पूछेगा। दे वर ट्राइंग टू बट वाज द कॉज कि पेंडेमिक की वजह से बहुत लोगों की जॉब्स चली गई। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ कि बहुत लोगों के पास काम नहीं है, तो सोनू सूद जैसे लोग, ऑफ कोर्स नॉट सोनू सूद का नहीं था ये, और किसी और का इनिशिएटिव था कि एक उन्होंने फंड बनाया जहां पर लोगों से पूछा गया आप थोड़े से पैसे दे दो, आप जो भी हीरो से बात करना चाहोगे आपसे उस हीरो से बात करा दी जाएगी। तो उन्होंने टाइप्स किए डिफरेंट हीरो हीरोइन से जो इस कॉज में आ गया है। फिर वो जो पैसा था वो उन लोगों के लिए यूज हुआ, एक तो उन लोगों के लिए यूज हुआ जैसे जो पुराने हीरो हीरोइंस हो जाते हैं, दैट जब उनके पास सोर्स नहीं रहता तो वो हॉस्पिटल में बेचारे मर रहे होते हैं, दे डोंट हैव एनीवन टू पे देयर बिल्स। ऐसी कुछ 1-2 हीरो हीरोइंस की बात हुई थी। तो मूवी किसने देखी है, बालिका वधू सीरियल कभी किसने देखा? मुझे अभी यही याद आ रहा है उनका सीरियल, वो जो दादी होती थी बड़ी, मैं नाम भूल रही हूँ बिल्कुल। Yes, ma'am. शी इज वेरी मेरे को बड़ी पसंद है वो, आई रियली लाइक हर। और वो हॉस्पिटल में थी और वो थोड़ी फाइनेंशियली शी वाज नॉट गुड, और कई फिल्म्स में भी हैं वो, दादी वादी बनी है काफी फिल्म्स में लोगों की। तो नाम भूल रही हूँ मैं उनका, मैं आई विल फाइंड आउट। तो उनके लिए जैसे ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, तो देयर आर मेनी कॉजेज, तो पीपल आर कमिंग अप विद। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नेटफ्लिक्स का ऑब्जेक्टिव है टू एंटरटेन पीपल, और उसमें अभी फिलहाल दे आर एक्सपेंडिंग देमसेल्व्स। पहले नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स ही था, राइट, कुछ ओरिजिनल सीरीज थी, फिर उन्होंने इंडिया में आए तो इंडियन ओरिजिनल्स बनवाए, फिर उन्होंने देखा कि ओरिजिनल्स बनवाना थोड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किल इन द सेंस इट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव थिंग, और टाइम भी लगता है एक ओरिजिनल, और फिर कंटेंट तो प्रोड्यूसर के ऊपर होगा कि कोई उनको अप्रोच करेगा और अच्छा बनाएगा तभी हो पाएगा। सो दे ट्राई टू टैप अप विद पीपल। बहुत सारे फिल्में इकट्ठी हुई क्योंकि उनका रेड चिल्ली के साथ, आपने देखा होगा उनका टाइप रेड चिल्ली के साथ है, तब उन्होंने एक नया जोन बना दिया है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो दे आर गोइंग विद। अब जैसे आप देखें ओटीटी की मार्केट में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो डिज्नी हॉटस्टार का है, बिकॉज ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अभी बिकॉज ऑफ आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म में सबसे तगड़ी जो चीज इंडियन जितने भी है वो सस्ते हैं, नेटफ्लिक्स कंपैरेटिवली सबसे महंगा है। या लेकिन सिर्फ मुझे लगता
आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स का क्रेज बहुत ज्यादा है, और नेटफ्लिक्स का जो टारगेट पॉपुलेशन है बेटा वो यूथ, अर्बन यूथ है। यस यस। वो बहुत ज्यादा 500 रुपए के लिए नहीं सोचते। हाँ मैम, बट एक है जो आपको 800 रुपये महीना दे रहा है और एक है जो आपको 1000 रुपये साल दे रहा है। हाँ नहीं, वो अब धीरे धीरे कंपटीशन आएगा। नेटफ्लिक्स अपने ब्रांड के ऊपर चल रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड, और अपनी इंटरनेशनल वेब सीरीज के ऊपर, और थोड़ा सा उनका अडल्ट वो भी है कंटेंट अवेलेबल जो नॉर्मली दूसरे चैनल्स पे अवेलेबल नहीं है। सो नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी देखें तो थोड़ी सी, इसलिए पीपल आर पेइंग, एक क्लास जोड़ दी अपने साथ उन्होंने। आर यू गेटिंग इट? यस सर, वो एप्पल वाली चीज। या एप्पल टीवी तो अभी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं। हाँ अभी नहीं है। अच्छा प्लीज ये म्यूट कर दीजिए, किसी एक का थोड़ा पीछे साउंड आ रहा है, सो दैट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स की वजह से सेगमेंट करते हैं कि किस मिशन से वो आए हैं, और वो मिशन स्टेटमेंट थोड़ी ब्रॉड रखी जाती है। जैसे फेसबुक की है कनेक्टिंग पीपल, हाउ दे आर गोइंग टू कनेक्ट, वो कभी मिशन में नहीं लिखा जाता है, वो थोड़ी सी मिशन स्टेटमेंट अपनी ब्रॉड ली जाती है कि ब्रॉडली हम क्या काम कर रहे हैं। गेटिंग इट? और दूसरी चीज होती है कि जब हम स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो हमें अपनी स्वॉट एनालिसिस भी करना हो। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारा इंटरनल एनालिसिस होता है, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हमारे एक्सटर्नल चीजें होती हैं। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी ब्रांड, राइट, उसका ओरिजिनल कंटेंट। बहुत सारी वेब सीरीज उसकी ओरिजिनल है, बहुत सारी मूवीज उसके पास ओरिजिनल है। तो कुछ लोग ओरिजिनली देखना चाहते हैं कि यार मिलेगा ये भी नेटफ्लिक्स पे। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, हालांकि बैन हो गई है वो सीरीज और मैं देख नहीं पाई हूँ। किसी के पास कहीं से जुगाड़ हो मेरे को भी शेयर करना। एक इंडियन बैड ब्रैट्स करके कुछ इसकी नेटफ्लिक्स की सीरीज आनी थी। रामलिंगा राजू के ऊपर एक एपिसोड बनना था, एक किंगफिशर वाले के ऊपर एपिसोड बनाया था उन्होंने, पर रामलिंगा राजू कोर्ट में चला गया और इंडिया में वो बैन कर दिया है। यूएस में ऑफ कोर्स वो चल रही है अभी भी। ब्रैट बिलियनियर्स या इंडियन बिलियनियर्स समथिंग करके कुछ, मैं भूल, बैड बॉय बिलियनर्स। हाँ हाँ। तो अब उनकी ये, अब ये एक उनका एक तरह का थ्रेट हो गया, ये शायद बहुत बिकता, लेकिन जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनके सामने एक थ्रेट की तरह आ रहे हैं। चेंजिंग रूल्स भी हैं, प्रिवेसी लॉज भी हैं, तो ये सारे एक थ्रेट बनाते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, जैसे रीजनल में अभी तक नहीं गया है नेटफ्लिक्स, रीजनल कंटेंट को वो ला सकता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास। अगर इंडिया में और भी गेम्स का अगर थोड़ा बहुत क्रेज है तो दे कैन पुट दैट थिंग ऑन दैट, राइट। तो ये स्ट्रेंथ उनकी ये है। और वीकनेस में ऑफ कोर्स उनकी क्या वीकनेस उनकी है कि उनके पास रीजनल कंटेंट नहीं है, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्रेट डिफरेंट नए टीवीज आते जा रहे हैं, ये थ्रेट का काम करता है। तो इस तरीके से जब भी आप सेगमेंटेशन डिसाइड करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिमाग में रखते हुए हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बनाने के लिए डिफरेंट सेगमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से मॉडल चलता है। दूसरा स्टेप पूरी सेगमेंटेशन में आएगा डिफरेंट मेथड्स। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें और इसके मेथड्स की बात करें, देखिए ये मेथड जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, राइट। ये एक बड़ी ब्रॉड सी लिस्ट है और कॉमन लिस्ट है, इसके बेसिस पे तो होता ही है। उसके अलावा कंपनी का एक्सपीरियंस, मार्केटर्स की स्ट्रेटेजी, कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, इन सब के हिसाब से भी ये सेगमेंटेशन होता है। जरूरी नहीं है कि जो 4 सेगमेंटेशन मैं आपको किताब में पढ़ाकर जा रही हूँ, आप जब कल जॉब करेंगे या जब आप अपनी कंपनी सेटअप करेंगे तो आप इसी सेगमेंटेशन के बेसिस पर चलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक ब्रॉड सेगमेंटेशन है। जितनी भी हम ज्यादातर चीजें अपने आसपास देखते हैं ये कहीं ना कहीं इस सेगमेंटेशन को टच जरूर करती है। पहला सेगमेंटेशन आपके सामने आ रहा है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जहां पर हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कंटेंट ज्यादा डाल दिया, शाहरुख खान का कंटेंट ज्यादा डाल दिया। अगर आप उसकी देखेंगे जोन में अफ्रीकन कंटेंट, एशियन, यूरोपियन, चाइनीज अलग अलग है। अगर आप एशियन खोलते तो उसमें ज्यादा चाइनीज हांगकांग का है, इंडिया उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे होता है, इंडिया में दिवाली के टाइम पे सेल मेला, फेस्टिवल टाइम पे 26 जनवरी के टाइम पे होता है। यूएस में वही सब चीजें आपकी क्रिसमस के टाइम पे हो जाती है। तो डिजिटल कंटेंट में ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन देना
एज सच मुश्किल होता है क्योंकि प्रोडक्ट तो होता नहीं है, सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो ज्योग्राफी क्या करोगे, पर आप ऑफर्स में ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन दे देते हो कि एरिया के हिसाब से अपनी ऑफर उस हिसाब से देते हैं। देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मुझे शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, इसके हिसाब से आप चीजें अलग अलग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोकिया के फोन देखे, कॉम्प्लेक्स भी हैं और सिंपल भी थे, राइट, बटन फोन भी थे। भाई एक पर्टिकुलर लेवल का जो बंदा है, और फिर हिंदी में भी आने लगा, उन्होंने अपना हिंदी का जो टाइपिंग है उसको बड़ा एडिटिव किया, ठीक है। आमिर खान को कपड़े पहनाए गए तो बड़े नॉर्मल कपड़े पहनाए गए, बिल्कुल वो बॉय नेक्स्ट डोर वाले, और वो भी बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास वाले, नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले। तो वहां पर फैमिली का साइज बहुत मैटर करता है। अब आप देखेंगे रिलायंस जियो के प्लान आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, आप अगर बात करें तो उनके बिल्कुल आ रहे हैं कि एक पिक्चर फ्री मिलेगी आपको रोज, राइट, जो उनका फाइबर वाला प्लान है, इतने जीबी फ्लो, बिकॉज उनको पता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे भी स्कूल कर रहे हैं ऑनलाइन, हस्बैंड वाइफ भी वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने कंजम्पशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से प्लान बनाया हुआ है, राइट। लाइफ की स्टेज के हिसाब से चीजें ऑफर की जाती है। अभी आपको पता होगा पेंडेमिक में एक और नई चीज शुरू हुई कि छोटी छोटी फूड की किट्स बनने लगी। अब जो बैचलर्स हैं, आप पूरी किचन तो वो सेट नहीं कर पाते हैं, राइट, क्या क्या चीजें सेट करेंगे, तो इंग्रेडिएंट्स का एक बंडल बनाकर दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग, राइट। तो ये मतलब कुछ भी, अगर आपको ऑमलेट और ब्रेड खाना है तो आपको पूरा ब्रेड खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको जो जो उसके लिए चीजें चाहिए होंगी, जैसे हमें प्लेन में नहीं मिल जाता छोटा सा नमक का पाउच मिल गया कहीं पे भी, इस तरह की चीजें दे हैव स्टार्टेड, ताकि आपको पूरा किचन सेटअप ना करना पड़ जाए, क्योंकि अचानक से एकदम हमारे घर में क्या हो गया है, स्पेशली बैचलर्स या जिन्होंने पूरा किचन मेंटेन नहीं किया, नाउ दे हैव स्टार्टेड कुकिंग देमसेल्फ। अब कुकिंग अपने आप शुरू कर दी है तो अब घर में सारा सामान तो नहीं जोड़ेंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि फॉर हाउ लॉन्ग वी नीड टू कुक आवरसेल्फ। हालांकि पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग आउटसाइड आल्सो, बट स्टिल देयर इज वन ऑप्शन जो जिन लोगों को अभी लग रहा है कि वी शुड नॉट ईट, सो दिस थिंग हैज कम। लाइफ की स्टेज, मतलब कोई बैचलर है, अच्छा आपको पता है जब आप लोग, अभी इंडिया में तो थोड़ा कम हुआ है, बट जितने भी हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं उन लोगों को पहले पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, और सबसे बड़ा चेंज एक फैमिली लाइफ की शॉपिंग बास्केट में तब आता है जब उनके घर में बच्चे हो जाते हैं, यू नो। पहली जो बास्केट होती है जब आपका सामान स्टफ होता है, जो भी आप ले रहे हैं ग्रॉसरी का, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एक फैमिली वेयर स्मॉल किड्स आर देयर। तो वो वहां से ट्रैप करना शुरू कर देते हैं कि इस घर में बच्चे किस एज के हैं, इनकी फैमिली में ये सामान जा रहा है, और फिर उसके हिसाब से वो टारगेट मार्केट करते हैं, हम लोगों को एडवर्टीजमेंट जाती है। तो लाइफ स्टेज के हिसाब से सारी चीजें और डिसाइड करते हैं। आपका एजुकेशन, ओनरशिप फैक्टर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज कम रिसेंटली। पहले कार की इंश्योरेंस की एड बड़ी आया करती थी, ठीक है भाई, लोगों को कार मेंटेन करनी है, इंश्योरेंस करना है। अब धीरे धीरे कार ओनरशिप का टाइम खत्म होता जा रहा है, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस हेलिंग एप्स। अभी इनको यूज करने की ज्यादा बात आती है रेदर देन कि आप कार की इंश्योरेंस ले लो, आप कार की सर्विस करा लो, इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। सिमिलरली फर्नीचर बेचने खरीदने की एड्स कम आती है, पर उस तरह की एड ज्यादा आती है कि आपको रेंट पे कुछ चीज लेनी है तो यू कैन टेक फ्रॉम देयर, बिकॉज अब हमने हर प्रोडक्ट को एज ए सर्विस यूज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर आपका सोफा 2 साल 5 साल चलाने का मन नहीं है, आप लो 2 साल यूज करो, इतने % आपको खर्चा पड़ेगा, अगला इतने % पे आपको मिल जाएगा। एंड यू हैव सीन पेपर फ्राई ने भी एक मॉडल बना रखा है, आप अगर उनसे आप खरीदेंगे, आप 2 साल यूज कीजिए, 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितने साल का अलग अलग कुछ होगा, एंड आपको इतने % वापस कट के वापस सारा हो जाएगा। बेसिकली आप वैसे चीज खरीद रहे हैं, पर अगर आपको मन है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीके से सर्विस का पैसा हो जाएगा, आपने रेंट पे ले लिया। आर यू गेटिंग इट? किस तरह की इनोवेटिव बिजनेस मॉडल दे पीपल आर ब्रिंगिंग टू टैप द मार्केट। दे नो आज के बच्चे अपॉर्चुनिटी, हमारा टाइम नहीं है कि एक जगह जॉब मिल गई, ठीक ठाक जॉब मिल गई तो बैठ गए। नाउ पीपल डोंट शाई अवे इन फाइंडिंग आउट न्यू जॉब्स। मैंने रिकॉर्डिंग पे तो लगाया था, लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। So people are not shying away from trying new jobs even abroad also. So in that scenario they don't want to add liabilities, जो पहले asset बोली जाती थी, आज के टाइम में वो liabilities है, into their life by buying new expensive furniture, कार नहीं खरीदेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, सामान मिनिमम रखेंगे, ताकि कभी भी वाइंड अप करना पड़ जाए, सिटी स्टेट कंट्री कुछ भी चेंज करना पड़ जाए तो दे शुड नॉट थिंक अबाउट दैट, या अगर वैसे ही मन चेंज हो जाए। सो मार्केटर्स हैज आल्सो थिंक कि जो हमारे कस्टमर्स हैं
या जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसमें ओनरशिप फैक्टर कितना चलता है, ज्यादातर लोग रेंट पे लेते हैं या ज्यादातर लोग खरीदते हैं, उस हिसाब से वो नए नए मॉडल्स लेकर आते हैं, राइट। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक जो टर्म है वो सबसे पहले इनेमल डेम्बे ने 1950s के अंदर इजाद की थी। और साइकोग्राफिक का जो मतलब होता है उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स को जोड़कर सेगमेंटेशन बनाया जाता है, जैसे साइकोलॉजिकल, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल कैसे है, मतलब पीछे से कैसे चलते आए हो आप, सेल्फ कंसेप्ट क्या है आपका अपने बारे में, और आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक और शॉर्ट फॉर्म है AIO, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके ओपिनियंस क्या है। इन सब चीजों को कैटर करते हुए आप लोगों के लिए या एज ए कस्टमर हम लोगों के लिए एक सेगमेंटेशंस तैयार किए जाते हैं कि ये सेगमेंट है जिसको स्टाइल चाहिए, ये सेगमेंट है जिसको कन्वीनियंट बुक चाहिए, ये सेगमेंट है जिसको लेस कॉम्प्लेक्स चाहिए, इस हमारी बहुत सारी चीजों को सोच कर करते हैं। जैसे कुछ सेगमेंट होते हैं जहां पर अगर आप देखें, कभी साउथ जाने का मौका मिला हो किसी को, द मोमेंट यू विल एंटर साउथ में रास्तों पर बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी के बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और उनकी ज्वेलरी जो होती है वो हमारे इंडियन जो ब्राइड होती है उनकी ज्वेलरी से बहुत डिफरेंट होती है। हैव एनीवन नोटिस दैट? किसी को पता है ये बात? नो? साउथ की शादी देखी है कभी कोई? उनकी क्लोथिंग और उनके जो एक्सेसरीज होती है, कभी किसी ने ध्यान दिया है? यस मैम, कभी काफी ग्रैंड से होते हैं। क्या शादी ग्रैंड होती है उनकी? साउथ साइड की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ जी मैम। शादी ग्रैंड होती है उनकी। मैम शादी नहीं, ज्वेलरी ग्रैंड होती है उनकी। हाँ, ज्वेलरी मतलब गोल्ड सारा का सारा basically। एक्सपेंस करते हैं वो सिल्क की साड़ी और सोने की ज्वेलरी पे, ठीक है, बड़े से बड़ा सेट पहनाते हैं, उनकी मदर भी, लड़की की मदर भी पहन के बैठेगी। द थिंग इज दैट शादी में पत्ते भी खिलाएंगे, बेसिक सा खिलाएंगे। आप दिल्ली की शादियों की तरह शादियां नहीं होती है 2-2 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए प्लेट होती है, ऐसी शादियां नहीं होती है वहां पर। पंडाल टाइप में शादियां होती है ज्यादातर, या बड़े बड़े बैंकेट हॉल में खाने पे खर्च नहीं होता है, चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। खर्च कहाँ होता है? या तो वो अपनी लड़की को फ्लैट या प्लॉट देते हैं, या फिर वो अपनी लड़की को देते हैं सोना, अभी भी, राइट। सो अगर आप वहां जाएंगे तो एक कल्चर है वहां का, ठीक है, वहां की सोशियोलॉजी ऐसी है कि वहां के आसपास के लोगों में शादी का यही कल्चर है और चीजें ऐसी होती हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया में बड़े से महंगे ब्राइडल लहंगा, वो कौन सी पिक्चर थी, करीना कपूर जैसा लहंगा? हमटी शर्मा मैम। हाँ, अम्पी शर्मा की दुल्हनिया, पता नहीं यस क्या मैम। है ना। तो this is the thing you have to understand कि कहाँ पर वो सेगमेंटेशन करते हैं कि किस कल्चर के लोग कैसा सोचते हैं, राइट। कभी आप बंगाल साइड की शादी देखेंगे, वहां का मेन्यू लिस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीजें दीज थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस तरीके से वो सेगमेंटेशन करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनका एक्टिविटीज, कभी गांवों में देखेंगे बाइक को ज्यादा प्रमोट किया जाता है रेदर देन कार्स, सोफिस्टिकेटेड कार्स। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि नहीं लेते लोग, मर्सिडीज वहां नहीं लेते, ऐसा नहीं है। पंजाब का जो रिच एग्रीकल्चर बंदा होगा वो लेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर जो उनकी रोड्स हैं और बाकी सब चीजें, वहां पर 2 व्हीलर ज्यादा बेटर रहते हैं, अप्रोप्रिएट रहते हैं। तो इस तरीके से वो एक्टिविटी, इंटरेस्ट और ओपिनियन भी देखते हैं, मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर सर्विस कहाँ पर हो पाएगी, उसको सर्विस सेंटर है कि नहीं, तो लोगों की ओपिनियन तभी बनेंगे। मर्सिडीज तो ले लेंगे पर सर्विस कराने के चंडीगढ़ जाएंगे या बहुत दूर जाएंगे अगर आप हरियाणा के आसपास की बात करेंगे। सो दीज थिंग्स दे हैव टू टेक इन माइंड, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, एक एड देख लेते हैं बीच में, ठीक है, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं इसमें, सेगमेंटेशन के ऊपर है, जस्ट सी देन वी विल डिस्कस इट। आई थिंक
कुछ लोगों ने ये देखे होंगे ऐड पहले, देखा वही आप लोगों ने पहले टीवी पे काफी आता था पहले ही, यस मैम, यस मैम। है ना। अब यहाँ पर डिज्नी को क्या किया गया है, किस बेसिस पर सेगमेंट किया गया है? मैम छोटे बच्चों के लिए। मतलब एज एक सेगमेंट हो गया, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन दिखाया गया। अब ऐसा नहीं है कि जो सेगमेंटेशन कंपनी एक बार डिसाइड कर लेती है वो हमेशा ही रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी अनदर एड। क्या हो रहा है यार? किसने भी मारा? Now you have understood what they are doing. यस मैम। पहले एक ऐड में अपने चैनल को ये दिखाया जाता है कि बच्चों को बड़ों का कंटेंट ना दिखाएं। देन अनदर ऑफ कोर्स ये एक टाइम की एड्स नहीं है। फिर उन्होंने सैटरडे संडे को अपने प्रोग्राम को लॉन्च किया कि जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि फैमिली टाइम माना जाता है सैटरडे संडे, नाउ दे हैव थॉट कि चलो बाकी 4 दिन 5 दिन जो व्हाटएवर पीपल आर सीइंग वाचिंग इन देयर टीवी फोन्स व्हाटएवर इट इज, बट चलो 2 फैमिली का टुगेदर टाइम है, तो दे हैव ब्रॉट दैट काइंड ऑफ कंटेंट जो सब इकट्ठे बैठ के देखें। नाउ दे फैमिलीज बदल रही हैं। नाउ दे वर डिस्कसिंग, और इस एड में क्या दिखाया गया, दे वर डिस्कसिंग सच ए इशू जो आज भी हमारे फैमिलीज में इस तरीके से ओपनली वी डोंट डिस्कस दिस थिंग विद आवर एल्डर्स, एंड दैट टू विद ग्रैंडफादर। दैट कैन बी ओनली वन मेंबर मैक्स टू मैक्स, जिसके साथ आप एनीवन कैन शेयर कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। बट नाउ सी they are trying to break all the taboos with all these things. They are showing that families are opening up, they are open to discuss each other's things. वो भी अपने सीक्रेट बता रहे हैं, आपके भी सीक्रेट पूछ रहे हैं, तो there is no gap in any sense in consumption thing or at emotional level. So we understand what's going in your mind, and we also want to tell that we were also going through all these things. Are you getting it? किस तरीके से वो चीजों को एक सोशल चीज, एक टैबू को भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल एडवर्टाइजिंग भी आ रही है इसके अंदर, और कहीं ना कहीं हाउ वी आर चेंजिंग इसको भी दिखाया जा रहा है, हाउ वी हैव स्टार्टेड एम्बेसिंग डिफरेंट चेंजेस, राइट। तो हम सेगमेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंटेशन का आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ना बिहेवियरल सेगमेंटेशन में सबसे ज्यादा आपका आता है कि ओकेजन्स है, जैसे अगर आप देखेंगे सूप की जो एड्स है, नोर सूप और ये सूप, जितने भी हॉट सूप्स हैं, इनकी अभी विंटर शुरू हो जाएगा, इनका सूप का एड शुरू हो जाएगा,
राइट। तो ओकेजन्स के हिसाब से करते हैं। कैडबरी की एड बढ़नी शुरू हो जाती है राखी के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे, कि यू यूज इट एज ए मिठाई, राइट। तो ओकेजन के हिसाब से वो स्पेसिफिकली होता है। जैसे अगर आप देखें कि क्रिकेट फीवर शुरू होगा तो उस टाइम स्पोर्ट्स के बाकी सामान की एड, हॉर्लिक्स टाइप एड, बच्चे की ग्रोथ की एड, इस तरह की चीजों की एड ज्यादा शुरू हो जाएगी कंपैरेटिवली, ठीक है। देन बेनिफिट्स, तो हर चीज के बेनिफिट अलग होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है बेनिफिट्स का एक अलग भी बना सकते हैं, और इसके अंदर भी डिफरेंट बुक्स ने अलग अलग कवर किया है, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करें। बेनिफिट्स में होता है कि आप कन्वीनियंस, अपने प्रोडक्ट को एज ए कन्वीनियंस दिखा रहे हैं, आप उसको ऐसे सस्ता दिखा रहे हैं, या आप उसमें प्रेस्टीज डाल रहे हैं। यू नो, जैसे प्रेस्टीज मर्सिडीज की एड है तो डेफिनेटली वो आप इकोनॉमी में नहीं मैच करते हैं, प्रेस्टीज पे दिखाते हैं। कन्वीनियंस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मतलब देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स की ये नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, जस्ट यूज इट। जैसे फेविस्टिक की एड थी, वो कन्वीनियंस की एड थी, उन्होंने बड़ी चीज दी, बड़ी पुरानी एड है ऑफ कोर्स, पर बड़ी बड़ी एक लॉजिकल चीज थी कि अगर आप कभी भी फेविकॉल लगाते थे तो सच में हाथ खराब हो जाते थे। तो जब फेविस्टिक आई, क्यों इतनी फेमस हो गई कि उस बड़ा कन्वीनियंट हो गया किसी भी चीज पे ग्लू लगाना, बिकॉज अदरवाइज ग्लू लगाना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता था, सब चीजें खराब हो जाती थी, राइट। इकोनॉमी ऑफ कोर्स, जहां पर भी सस्ती चीजें हैं, बहुत चीजों की इकोनॉमी पर तो इंडियन कंज्यूमर है, थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है, तो इकोनॉमी पे तो आपको बहुत सारी ऐड मिल जाएंगी जहां पर उन्होंने इकोनॉमी को दिखाया गया हो। जैसे HP लेजर प्रिंटर की ऐड देख रहे होंगे आप, मैंने अब एक्चुअली बहुत सारी एड्स हो जाती तो मैंने दिखाई नहीं उसको, फिर कभी दिखाऊंगी। 10 पैसे में एक प्रिंटर जो ले रहे हैं, शायद मैंने की भी हुई है डाउनलोड, अब देखूंगी मैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। तो आप बेनिफिट दिखा रहे हैं कन्वीनियंट में कि 10 पैसे में एक प्रिंट मिल जाता है, बाजार जाते तो इतने का मिलता है, एक बार की इन्वेस्टमेंट। जैसे LED ने दिखाई थी, सिस्का LED ने लाइट, कि बार बार बदलते हैं, उससे भी वही खर्चा होता है, और आप एक ही बारे में इन्वेस्ट कर दीजिए, इकोनॉमिकल पड़ेगा। सो देयर आर सो मेनी एड केटरिंग टू इकोनॉमी थिंग। प्रेस्टीज ऑफ कोर्स, आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी एड्स होती है, रोलेक्स की है, रेडो की वॉच की एड है, या जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो भी आपकी ब्रांडेड महंगे वाली चीजें होती है, जहाँ पर स्टाइल स्टेटमेंट होती है, वहां पर आपकी प्रेस्टीज हो जाती है। तो उसके बाद हमारा एक और नया सेगमेंटेशन है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजों को डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें जिनको हम डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं। आपका इंटरनेट भी है डिजिटली कंज्यूमिंग, बुक्स हमने डिजिटली कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, म्यूजिक हम डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं, अब दैट मींस हार्ड में हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। और जितना भी हम कंटेंट, पिक्चर्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो हम डिजिटली कर रहे हैं। न्यूज हम डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं। सो धीरे धीरे हम सारा कुछ डिजिटली कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां पर जब भी हम कोई चीज अपनी कर रहे हैं सेगमेंट, तो हमें अपने कस्टमर्स का टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन भी करना होता है कि वो किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे है, मतलब वो टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा लिंक्ड है, कितना ज्यादा वो कंफर्टेबल है विद द टेक्नोलॉजी, और उसके हिसाब से हम सेगमेंट करते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से देखता है, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट मेरा इस सेगमेंट के लिए है। जैसे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी 5 तरह के होते हैं। जैसे होते हैं हमारे अर्ली एडॉप्टर्स, पहले होते हैं हमारे इनोवेटर्स, जो बिल्कुल जैसे कोई प्रोडक्ट आया, एड देखी और फटाफट ले आए, सुना जरा सा किसी प्रोडक्ट के बारे में और उसको खरीदने पहुंच गए। फिर हमारे होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स हमारे वो होते हैं जो चीजों को लेना शुरू करते हैं, मतलब चलो सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे बायर्स आ जाते हैं नॉर्मल, कि हम सब ने ले लिया तो चलो लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं कि फॉलो करना शुरू कर दिया, काफी लोगों ने ले लिया। लैगर्ड जो होते हैं कि जब पूरी दुनिया ने ले लिया तो अभी भी सोच रहे होते हैं कि मैं लूं या ना लूं। मतलब आज के टाइम में आज भी कोई ईमेल यूज ना करे, आज के टाइम में भी कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग ना करे, तो एक तरीके का वो लैगर्ड हो गया कि अभी भी करूं या ना करूं, ATM को यूज करे ना करे, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करे ना करे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी लैगर्ड वाले कस्टमर्स यहाँ पे, व्हेन एवरीबॉडी इज यूजिंग दैट। इसी तरीके से जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर एक टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन है। तो टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या आता है कि इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला है आपका साइबर स्नोब्स। साइबर स्नोब्स हैं आपके, अपग्रेड करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को फटाफट और इन्वेस्ट करते हैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में। कोई भी ट्रेंडिंग, जैसे महंगे से महंगा फोन आएगा, 1 लाख का फोन आएगा, 1.5 लाख का फोन आएगा, जो भी फोन आएंगे, कोई भी नया फीचर होगा उसमें, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट दैट, और वो नई टेक से नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। ये फोन्स वालों के लिए बड़ा अच्छा एक
सेगमेंट बनता है कि वो नए से नई टेक्नोलॉजी लाकर अपना नया फोन लॉन्च कर रहे हैं, कितना उसको टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेट बनाते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरे कितने कस्टमर साइबर स्नोब्स हैं जो मेरी नई टेक्नोलॉजी को विदाउट मच थिंकिंग कि ये मेरी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, दे विल गो एंड टेक इट, बस नई टेक्नोलॉजी है, आई हैव टू टेक इट। सेकेंड हमारा आता है फास्ट फॉरवर्ड। वो थोड़ा सा ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में अच्छे होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं कि मुझे वही टेक्नोलॉजी लेनी है जिससे सच में मेरा टाइम बचे और प्रोडक्टिविटी हो, वैल्यू फॉर मनी हो और प्रोडक्टिविटी भी हो। फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, ले लेते हैं, बट दे रियली थिंक कि वो चीज बेनिफिशियल होगी, ओनली देन आई विल बाय, अदरवाइज मुझे नहीं लेनी। थर्ड होते हैं हमारे हैंड शेकर्स। हैंड शेकर्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो काम तो करना चाहते हैं बट वो खुद नहीं बहुत ज्यादा करते, वो ऐसा कोई बंदा ढूंढेंगे जो उनके लिए टेक्नोलॉजी यूज करेगा, मतलब अपने ऑफिस में बॉसेस हो गए बेसिकली, टेक्नोलॉजी से खुद इतने अपडेट नहीं है, पर वो चाहते हैं कि उनके नीचे जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी यूज करें, डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं हुए, बेसिकली इनडायरेक्ट कंज्यूमर हो गए। तो यहाँ पर इस तरह का भी एक सेगमेंट बनता है जो बेनिफिट्स तो लेता है टेक्नोलॉजी के, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करने के पेन्स नहीं लेता है, सीखने के पेन नहीं लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन पेन नहीं लेता, बट दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन इनडायरेक्ट वे, दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक सेगमेंट है उसके बाद आपका माउस पोटैटोज। नाउ माउस पोटैटोज इज वो जो एफ्लुएंट है, अमीर है, टेक्नोलॉजी लविंग इंडिविजुअल्स हैं, न्यू एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे चलते हैं, पीसी फोकस्ड है एंड इनटू सीडी रोम्स। माउस पोटैटो का मतलब ये कि सीख तो करते हैं पर स्लो है उनकी स्पीड, धीरे 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 जाएंगे। अमीर है, पैसे हैं, टेक्नोलॉजी का भी प्यार है, पर जब तक वो टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज ना हो जाए, कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस लोग ना लेने पड़ जाए, और तब वो नए एक्सपीरियंस के ऊपर आना चाहते हैं। दो पीपल आर पुट इन द माउस पोटैटोज कैटेगरी। एंड लास्ट हमारे ट्रेडिशनलिस्ट, जिनको बस पूरी दुनिया चेंज हो जाए, बिल्कुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करना चाहते, कहते मुझे तो मजा ही नहीं आता, मैं लेने ही नहीं चाहता, आई कांट यूज इट, अनलेस कोई और ऑप्शन ही ना बचे, दे वोंट यूज इट। तो ये हमारा मेन एक क्लासिफिकेशन है जो पर्टिकुलरली हमारे डिजिटाइज प्रोडक्ट के केसेस में या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के केसेस में ज्यादा फिट बैठता है। जैसे मैंने आपको एक फोन का एग्जांपल दिया कि अब जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल सबके पास है, ये भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, पर कुछ लोगों ने मोबाइल बिल्कुल तब लिया जब उनको लगा कि अरे इसका तो बड़ा फायदा, और उसमें भी बड़ा सिंपल फोन लिया। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर मैं लोअर इनकम ग्रुप का बात करूं तो वहां पर मनी बड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन घर के कुछ बुजुर्ग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड मदर, शी वॉन्टेड टू हैव फोन, राइट, उनको फोन की यूटिलिटी भी है, उनको शी लाइक्ड आल्सो, शी वांटेड टू हैव फोन आल्सो, पर एट द सेम टाइम शी डजंट वांट ए कॉम्प्लेक्स फोन, कि यार ठीक है मतलब वो करना है, तो उनके लिए वो ट्रेडिशनलिस्ट है। फोन जब सारी दुनिया के पास में हो गया, देन शी वांटेड कि यार मुझे भी दिला दो, इट इज वेरी कन्वीनियंट, धीरे धीरे हुआ, और उनको माउस पोटैटो की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि शी कुड बाय द फोन, टेक्नोलॉजी लव भी है कि मुझे भी फोन चाहिए इवन इफ लैंडलाइन इज देयर, बट वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर आता। सो कई बार थिन लाइंस होती है दो सेगमेंट्स के बीच में, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी और द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो ये बेसिकली बेसिक क्राइटेरिया है हमारे सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टारगेटिंग पढ़ाऊंगी। एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं अपनी ऐड में, एक लास्ट वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें हमने बात करी है, जो हमने बात की थी सेगमेंट ऑफ वन। ना अब पहले उन्होंने अपने आप को निश किया ना, ओटीटी मोबाइल फोन्स पे जो भी चीज आ रही है एक तरीके से, उस चीज ने अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट शुरू कर दिया सेगमेंट ऑफ वन से। नाउ देखिए सेगमेंट ऑफ वन प्लीज एक बार। Now in this ad उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई, क्रिकेट भी दिखाया,
और ये भी दिखाया कि सबको घर में सब कुछ अपना अलग अलग टेस्ट है। दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंट ऑफ वन, राइट। आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, सो यू प्लीज शेयर योर कंसर्न।